Hi and good evening all of you. Welcome back to the chemistry lecture with your dean sir. I really like the way that you have responded. आप लोग पूरी तरह से मतलब होमवर्क भी कर रहे हो, also doing assignments properly, showing me. It's a very nice thing. Okay, keep it up. Keep doing the study also. See, in the previous lecture, we have taken some numericals also. Some numericals are still left. Okay, so the first numerical is here on the board. Calculate the number of atoms in each of the following. और यहाँ पे आपको दिया है एवरेज एटॉमिक मास. जो n चं दिलं तुम्हाला 14, सल्फरचं तुम्हाला दिलेलं आहे 32 युनिफाइड. The first one given over here is 0.4 mole of nitrogen. So there are two different cases. In the first case, yes, 0.4 mole of nitrogen. For this case, you have to solve. You know that the formula for number of atoms, yeah, is number of molecules is equal to n into Avogadro number, और ये है वो number. So the value of n is here given as 0.4 into 6.022 into 10 raised to 23. Okay, so here point will be here 2.4088 into 10 raised to 23. That's so easy. Okay, so in this way the first part is over. Only one formula we have to use. इथे फक्त आपण काय करायचं तुम्हाला कळलं का? एकच वापरलेला आहे फॉर्म्युला नंबर ऑफ atoms. ओके, similarly in the next part 1.6 gram of sulfur, 1.6 gram of sulfur तुम्हाला दिलेला आहे. नंबर ऑफ मोल्स काढूयात आपण, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स सगळं फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती असेल. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर divided by molar mass of sulfur. Yes. Now in case of, yes, mass is here 1.6 और वो दिया है ग्राम में. मोलर मास क्या होता है सल्फर का? Yes, it's 32 grams पर मोल में आएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे दिया है आपको 32 यूनिफाइड. ओके, अभी यहाँ पे इस केस में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स. अभी यहाँ पे ऊपर है 1.6, नीचे है 32. सो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें मिल जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा वाला? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स. सो हियर वैल्यू विल बी, क्या करेंगे बताओ, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 एंड विल बी 320. ऊपर और नीचे हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया. सो हियर 16 1 जा 16, 16 2 जा 32. ओके, 0.05. This is the value of number of moles. And therefore, yes, number of atoms is equal to S n into Avogadro number. So again this number is here 0.05 into 6.022 into 10 raised to 23. क्या आएगा यहाँ पे? So here we can write here 5 into 10 raised to -2. इला अपना सोल्यूशन तो भी नहीं पाएगा, because ये जो है ये होगा 5 डिवाइडेड बाय 100, मतलब हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 raised to 2, और वही अगर ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10 raised to -2. सो हियर 6.022 into 10 raised to यहाँ पे हो जाएगा 23. पहले देखते हैं यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 10 raised to, yes, 23 minus 2
is nothing but equal to 21. Okay. Like this coming. Okay. So this is आंसर ये आ रहा है. ठीक है. अगर आपने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया तो ये हो गया. सो इन दिस वे लेट्स चेक आउट क्या आंसर दिया है यहाँ पे. यस, अगर हमने यहाँ पे मतलब इस पॉइंट को शिफ्ट किया तो वही जो आंसर आपकी बुक में दिया है वो सही है और ये भी सही है वैसे. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर इज 3.0110 into 10 raised to आएगा 22 and the first answer also given over here is also right. Okay, now doubt regarding this. ये आया समझ में कैसे किया? This type of converters you have to do, many times. तो ये हमने इस तरीके से किया 5 divided by 100, then 5 divided by 10 raised to 2 और 10 raised to 2 जर सिंधा अपन वरते आएगा तो वही तो 10 raised to minus 2. So down this one. Now the next problem is here. देखिए यहाँ पे क्या दिया है. 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन. मेटल को बर्न किया है ऑक्सीजन में. मेटल बर्न विद ऑक्सीजन. It is suppose giving metal oxide like this. Now 2 gram of oxygen. Sorry, 2 gram of metal burn in oxygen to give 3.2 ग्राम. ये आ रहा है इसका 3.2 ग्राम. ठीक है. नाउ द फर्स्ट केस इन विच 2 ग्राम ऑफ मेटल ला बर्न केल्यानंतर तुम्हाला मिळते 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सॉरी ऑक्साइड. सो यहां पे दिस इज द फर्स्ट केस. ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. देन they are saying that 1.42 gram of the same metal if heated in a steam. So this is a different reaction. Okay, मेटल को ऑक्सीजन से एक बार हिट किया है, दूसरी केस में मेटल को हिट किया है स्टीम के साथ, तो यहां पे भी हमें मिल रहा है मेटल ऑक्साइड. सो यस, 1.42 gram of the same metal heated in steam gave 2.27 of its oxide. ये पूछ रहे हैं तो ये कौन सा लॉ हुआ? You know that we have seen that the 5 laws of chemical combination, you know that. तो देखते हैं अभी हम यहाँ पे. चलो अभी यहाँ पे काम करते हैं. There are 2 different reaction involved. Metal reacts with oxygen and second is metal reacts with steam. Now see first case यहां पे क्या दिया है हमें? मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. तो यहां पे क्या होगा? अगर हमने सी मेटल ऑक्साइड में से मेटल का मास निकाल दिया तो क्या बचेगा? सो यस, मास ऑफ ऑक्सीजन is equal to mass of oxide minus mass of yes metal. तो देखिए 3.2 minus 2 is equal to क्या आएगा? 1.2 gram. This is nothing but the mass of oxygen, right? So here we can calculate here the percentage by mass of oxygen as well as that of the metal, right? So यहां पे अगर हम बात करते हैं इधर
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा एंड परसेंटेज ऑफ मेटल क्या होगा. सो आई विल राइट हियर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या दिया है यहां पे 1.2 डिवाइडेड बाय जो टोटल दिया है मास ऑक्साइड का वो तो है 3.2 और यहां पे है परसेंटेज तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से. तो ये हो जाएगा कितना आगे इट्स नथिंग बट 120 डिवाइडेड बाय 3.2. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट आंसर. देखिए यहां अगर मैं सॉल्व करके आपके सामने सॉल्व करके रहूंगा तो हमारा मतलब टाइम निकल जाएगा. सो आई विल एक्सपेक्ट दैट या आप लॉग से इसको सॉल्व कीजिए ताकि आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है. सो हियर द वैल्यू शुड कम of this will be, I think that yes, this value will be equal to 37.5%. Similarly, percentage of अगर हम बात करते हैं मेटल की क्या आएगा यहां पे इधर आएगा 2 डिवाइड बाय 3.2 into 100. If you solve this, it will be equal to 200 divided by 3.2. If you solve this, its value will be 62.5%. Now this is the first case. Okay. Now ये तो आपने देखा है this is nothing but here percentage of oxygen. यहाँ पे दिया है percentage of metal. In the second reaction देखिए क्या दिया है यहां पे 2.27. सो हियर अगेन मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2.27. ये है मास ऑफ द ऑक्साइड. इसमें से अगर हमने मेटल का मास निकाल लिया तो क्या आएगा यस इट्स 1.42. सो 7 minus 2 here will be 5. Then 12 minus 4 is 8. 0.85 ग्राम ये आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन हियर. सो अगेन हम यहां पे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मेटल इज इक्वल टू क्या है यस 1.42 डिवाइडेड बाय जो ऑक्साइड का दिया है वो है 2.27 into 100 एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो आएगा 0.85 divided by 2.27 into 100. If you solve this, your value should come, I think that ये आएगा 37.44, right? And the next value will come 62.56. 62.56. If you see this properly, this value will be nearly 37.44 is nearly equal to yes 37.5 37.5%. और ये वैल्यू अगर देखोगे तो इट इज इक्वल टू 62.5%. नाउ यू कैन सी सेम इधर भी वही वैल्यू आया था इधर भी वही वैल्यू आया है. इधर क्या वैल्यू आया है 62.5 इधर भी वही वैल्यू आया है. सो कौन सा लॉ यहां पे आ रहा है यस अ प्योर केमिकल कंपाउंड always contains the same proportions by weight irrespective of the nature of वो अगर उसका सोर्स कहां से भी क्यों ना हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने वाटर लिया है डैम से या फिर रिवर से तो उनमें जो भी रहेगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन इट विल बी सेम चाहे उसका सोर्स कौन सा भी क्यों ना हो. दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. Okay, any pure chemical compound always contains same elements with fixed proportion by weight. So this is not nothing but the law of yes, ये कौन सा लॉ हुआ यहाँ पे law of definite proportion. क्योंकि हमने यहाँ पे देखा अलग अलग सैंपल्स में से जो भी रेशियो आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सेम ही आ रहा है. So this law is according to the law of definite proportion.
ओके, राइट डाउन दिस वन. लॉसिंग का भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. ओके, now see, in the 2 moles of acetaldehyde, so here आपको देखो पहले ये दिया है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है आपको. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H4. C2H4O is nothing but the formula of acetaldehyde, and number of moles of acetaldehyde is equal to 2. अभी हमको यहां पे पूछा है कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन. वन बाय वन वी हैव टू सी ऑल. द फर्स्ट वन इज हियर, नंबर ऑफ moles of carbon is equal to, yes, क्या है यहां पे एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ acetaldehyde into, yes, number of moles of acetaldehyde into number of carbon atoms. Number of carbon atoms. तो देखो ना यहां पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको 2, और जो नंबर ऑफ मोल्स हमको दिए हैं वो भी है 2. सो 2 into 2, so it is equal to 4. So the number of moles of carbon will be equal to 4. क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड दिया है आपको, जो दिया है वो दिया है 2, और नंबर ऑफ कार्बन अगर यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला में तो 2, यहाँ पे 2 ही दिए हैं, इसीलिए. In the same manner, if you use the formula for hydrogen, then number of moles of, yes, hydrogen is equal to number of moles of, yes, acetaldehyde into number of carbon atoms. अभी यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इधर क्या आना चाहिए, देयर शुड बी हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं फॉर हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन एटम्स. ओके, सो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स दिए इसके लिए 2, एंड नंबर ऑफ केस अगर आप देखोगे सो इट इज इक्वल टू 4. सो इट्स नथिंग बट 4 2s are 8. सो नथिंग बट 8 इज द आंसर, 8 मोल्स. आपको पता है ये सिंबल हम इसके लिए यूज करते हैं मोल, ये यहां पे भी आएगा मोल. इधर है अभी सेम वे यू कैन डू नाउ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला, number of moles of, yes, acetaldehyde into number of oxygen atoms. अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 ही है मोल्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे तो एक ही है, इसलिए 2 1s are 2 only, so only 2 moles. ठीक है. देन फॉर डी पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए बताया क्या फॉर्मूला आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू अवोगाड्रो नंबर. इसलिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ फॉर्मूला लिखा है मेरे ख्याल से, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 6.022 की जगह पे 6.023 भी दिया है, वो भी मतलब चलता है, यहाँ पे कोई पढ़ने वाला. सो द वैल्यू ऑफ n हियर इज इक्वल टू, यस, कितने दिए आपको नंबर ऑफ मोल्स 2 ही है, सो हियर 6.022 into 10 raised to 23. So 2 to the 4, 2 to the 4, 2 0 0, 2 to the 12. So 12.044, no, 44, and here like this. Okay. So this is nothing but number of molecules. So in this fashion, we have to calculate the value for different
एटम्स या फिर एलिमेंट एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको भी आप लिख लीजिएगा। Then the next problem is calculate the number of moles of magnesium oxide MgO in 80 gram and 10 gram of the compound। और आपको दिया है average atomic mass of magnesium as well as that of oxygen। So first of all, let's calculate molecular mass of magnesium oxide। So it is equal to, yes, कितने एटम्स है मैग्नीशियम के? एक ही। So here 1 in bracket average atomic mass of magnesium plus 1 in bracket average atomic mass of oxygen। So आपको पता है यह है 24 यूनिफाइड प्लस 16 यूनिफाइड इट इज इक्वल टू 40 यूनिफाइड। मतलब मोलर मास की अगर हम यहां पे बात करेंगे, मोलर मास ऑफ MgO इज इक्वल टू 40 ग्राम्स पर मोल। इधर यह है इसका मोलर मास। अभी हमें निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? यस, नंबर ऑफ मोल्स is equal to mass of substance divided by, yes, molar mass of substance। यूजुअली ये होगा ग्राम में और ये होगा ग्राम्स पर मोल में। ठीक है, तो चलिए पहले जो हमको केस दिया है, क्या दिया है? हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फर्स्ट केस। इसके लिए पता है आपको, हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं? n। n इज इक्वल टू क्या आएगा? मास ऑफ द सब्सटेंस इज 80 ग्राम। बड़ी मोलर मास 40 ग्राम। अभी 80 ग्राम से ये 40 ग्राम पर मोल है। ग्राम ग्राम हो जाएगा 40 2 so यहाँ पे हो जाएगा 2, ये जाएगा ऊपर। सो ये यहाँ पे हो गया पहले का आंसर। n इज इक्वल टू 2 मोल्स। सिमिलरली 10 ग्राम ऑफ द कंपाउंड बोला है। सो हियर n इज इक्वल टू, अगेन द सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर। ओके, क्या दिया है? मास ऑफ सब्सटेंस वो है 10 ग्राम्स और क्या है मोलर मास? यस, 40 ग्राम्स। क्या आएगा? यस, 0. यस 25 मोल। यह आएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू। ओके, सो आई डन दिस वन आल्सो। Next problem is here, what is the volume of CO2 occupied by 5 moles and number 2 0.5 moles of CO2 gas measured at STP। देखिए, आपको याद होगा जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिए थे, इसमें से हमारा फॉर्मूला था नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स वाला। नंबर ऑफ मोल्स के बाद और था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी। ये 3 फॉर्मूले अगर आपने किए तो एक्सरसाइज में से चाहे कौन सा भी न्यूमेरिकल क्यों ना हो, आप लोग बड़े आराम से कर पाएंगे। सो दिस 3 बेसिक फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। न्यूमेरिकल्स सेट तुम्ही जर न्यूमेरिकल सॉल्व करू शकत असाल, इट्स क्लियर दैट युअर थियरी आल्सो परफेक्ट। स्टूडेंट्स की थियरी अच्छी होती है, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो you know that it will have the advantage. So that is the reason numericals is an important part of physical chemistry. ये तुम्हारा याद पाहिजे। It will distinguish you from other students. तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। So stay focused. देखिए, what is the volume of the CO2 occupied by 5 moles और यहाँ पे दिया है STP पे। So in the formula we
know that, yes, volume of gas at SPP is equal to N into 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या फिर हम इसको लेटर भी लिख सकते हैं। चलिए पहले केस में जो दिया है हमें, द फर्स्ट केस हियर, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू दिया है 5 मोल्स ऑफ CO2 बताया है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गैस, I mean CO2 here is equal to at SPP, क्या वैल्यू है n का 5 into 22.4 डेसीमीटर क्यूब। So 5 4s are 20, 5 2s are 10 plus 2 12, 5 2s are 10 plus 1 11, so 1112.0 डेसीमीटर क्यूब, ये है फर्स्ट का आंसर। देखिए कितना इजी है। सिमिलरली सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। सेकेंड केस के लिए जहां पे आपको दिया है नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू क्या दिया है S, यहां पे दिया है 0.5 इंटू 22.4 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, राइट, इंटू 22.4। सो यहां पे क्या आएगा, yes 2/2 2/2 and 2 to the 4, 11.2 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो ये है इसका सॉल्यूशन। फॉर्मूला आपको याद रखना है ये, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां पे जगह बचे हैं इसलिए मैंने अभी ये भी पूरा कर लिया है। इसमें कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। Imagine that sulfur reacts with oxygen to give sulfur dioxide in contact process. It's a process but you have in the syllabus next year in the topic P block 11. तो उसमें हम देखेंगे क्या होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां पे देखिए, ये मैंने लिखा है नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे सल्फर होता है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन होता है गैसियस फॉर्म में, SO2 भी होता है गैसियस फॉर्म में। नाउ रिएक्शन इज सो बैलेंस। आपको मालूम होना चाहिए एटॉमिक मास में, पहले यहां पे भी देख भी ले रहा हूं, दिस नॉर्मल रिएक्शन विदाउट लुकिंग हियर आई विल टेल यू, आई मीन ये नॉर्मल रिएक्शन हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। यहां पे 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक मास 16 इंटू 2 हो जाएगा वापस 32 ग्राम। टू फॉर्म सल्फर का होता है 32 प्लस 32, यहां पे हो जाएगा 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको देखिए यहां पे दिए हैं एवरेज एटॉमिक मासेस। अभी ये हमने यहां पे लिखा है नॉर्मल इक्वेशन। याद है मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर में, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कैलकुलेशंस based on the balanced chemical equation is nothing but stoichiometry। ठीक है, तो यहां पे ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको आते रहते हैं, आपको केमिकल इक्वेशन से वो सॉल्व करने पड़ते हैं। एक्चुअली दिस चैप्टर इज हैविंग, मतलब ये देखेंगे हम लोग पार्ट स्टोइकोमेट्री का, बट इन द नेक्स्ट चैप्टर, ओके, चैप्टर नंबर 2 में। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं क्या दिया है हमें न्यूमेरिकल्स में। कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब आपको निकालने का है सल्फर डाइऑक्साइड का मास बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर। यहां पे कितना है 32, 16 ग्राम ऑफ सल्फर को बर्न करने के बाद आपको कितना मिलेगा SO2 एज अ क्वेश्चन। 32 grams of sulfur will give 64 gram of SO2. 16 gram of sulfur will give how much SO2? Just like 32 के लिए 64, 16 के लिए कितना x, पता नहीं x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो
32 gram of sulfur produces, yes, 64 gram of SO2. Therefore 16 gram of sulfur will produce, मतलब ये x का वैल्यू क्या आएगा वो, yes, x is equal to 64 into 16 divided by 32. 32 grams. It's quite easier. Okay, so note down this one also. Now this is the last problem from this chapter, क्योंकि जो दिया है न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में, इसमें से प्रॉब्लम दिया है पोटेशियम क्लोराइड का, KClO3 का, और ये हमने लिया था प्रीवियस लेक्चर में ही, आप देख लीजिए उसको। आई थिंक इसका पी जो दिया है ना टेक्स्ट बुक में, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 gram of urea. Now I told you urea is having the formula like this, NH2 C double bond O and NH2, यह है यूरिया का फॉर्मूला। इससे पहले ही मैंने आपको बोला था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। देखिए आगे क्या दिया है, प्रेजेंट इन 5.6 gram of urea and also calculate number of atoms of nitrogen, carbon and oxygen, ठीक है। पहले हमें काम करेंगे, चलो यहां पे जो दिया है फॉर्मूला, इसे हम लोग यहां पे निकालेंगे पहले मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ यूरिया, ये प्रॉब्लम में दिया है क्या हमको, यस इट गिवन, नहीं दिया है ना प्रॉब्लम में, ये हमको नहीं दिया गया है। ओके नो, ठीक है। However, you can find out, आएगा 60 grams per mole यूरिया का मोलर मास। You know that how to calculate the molar mass of the molecules. मोलर मास आया 60 grams per mole, ये है मोलर मास। और आपको दिया है मास ऑफ यूरिया दिया है प्रॉब्लम में, वो वैल्यू है 5.6 grams. So therefore number of moles of urea is equal to mass upon molar mass. So mass क्या है 5.6, what is molar mass 60. Isn't it? Mass is nothing but 5.6 given to you and molar mass होगा इसका आता है 60, तो क्या आएगा वैल्यू, आई थिंक द वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.0, यस यहाँ पे किया था, यस 0.0933, ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू। इफ यू डू बाय द लॉग बुक इट विल बी बेटर, लॉग बुक से करना है आपको, या फिर डायरेक्टली यू कैन डू आल्सो, इट्स वेरी इजी। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हमने इस तरीके से निकाला है। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ गया है, हमें तो निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अभी देखिए नंबर ऑफ एटम्स का जो होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.022 इंटू 10⁻23। अभी ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ गए। अगर देखा जाए तो पूरी यूरिया में
N के 2, H के 4, मतलब हो गए 6, और कार्बन का 1 7, ऑक्सीजन का 1 8 टोटल. But urea has 8 atoms, out of which, yes, पहले पूछा है हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन, out of which 4 atoms of hydrogen, then yes, 2 atoms of nitrogen, 1 atom of each कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन. राइट, ठीक है ना, एक कार्बन का भी है, एक है ऑक्सीजन का. सो इस तरीके से दिए हैं हमको ये नंबर ऑफ एटम्स. सो देयरफॉर number of atoms of hydrogen in 5.6 gram of urea is equal to, yes, क्या करना पड़ेगा, 4 into, yes, ये है जो दिया हुआ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे 0.0933 यहाँ पे करना पड़ेगा इनटू हम 4 इसीलिए क्योंकि H के हैं यहाँ पे 4, ठीक है, और हमने यहाँ पे निकाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, तो इनटू हमें करना पड़ेगा अवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻² आएगा यहाँ पे 23. यहाँ पे हमने लिया है फॉर हाइड्रोजन. सिमिलरली नंबर ऑफ, yes, atoms of nitrogen in 5.6 gram of urea is equal, क्या करना पड़ेगा फिर इधर, n की कितने एटम्स है यहाँ पे 2 है, इसलिए 2 into this value 0.0933 into the same value, you know, Avogadro number, ये आएगा कुछ इस तरीके से. And therefore the last one, no, next one is number of atoms of carbon in 5.6 gram of यूरिया इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1 इंटू 0.0933 इंटू 6.022 इंटू 10⁻². एक ही आइटम है इसलिए हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया. इस तरीके से हम यहाँ पे ये वैल्यूज फाइंड करेंगे. ओके, तो आपको यहाँ पे जो दिए हैं वैल्यूज, लास्ट वाला जो है ऑक्सीजन का सेम आएगा जैसे कार्बन का आया है, और फिर के वैल्यू जैसे दिए हैं द वैल्यूज, यू नो, द फर्स्ट वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.24 इंटू 10⁻² आएगा 23. यहाँ पे जो वैल्यू है ये आएगा n का 1.124 इंटू 10⁻23, and here also the value will be equal to 0.562 into 10⁻23. सबका पावर यहाँ पे सेम ही रखा है, और जैसे आपको पता है कि जितने भी कार्बन है उतने ही यहाँ पे ऑक्सीजन भी है. सो इन द सेम मैनर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, यस, वही करना पड़ेगा ना, 1 इंटू 0.0933 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 0.562 इंटू 10⁻23. यही वैल्यू आएगा इसके लिए भी है. सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यूज. ओके, तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे इनको यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, और इस तरीके से जितनी भी न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक के पीछे वाले हैं हमने लगभग सॉल्व कर लिए हैं. ठीक है, अभी जो दिया है मैंने आपको डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आपने सॉल्व किए होंगे.
या फिर नहीं किए होंगे, इसके लिए हम लोग वापस एक लेक्चर लेंगे। और शायद आपको अभी मैडम ने लॉ भी पढ़ाया होगा, टीचर ने लॉ पढ़ाया होगा ना आप लोगों को, ठीक है, बात हुई थी तो आप लोगों ने लॉ पढ़ लिया होगा, तो इसको मतलब आप लॉ के इस्तेमाल से करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, बाकी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक या फिर द नेक्स्ट लेक्चर में जो बचेगा क्लास 1 असाइनमेंट दैट वी हैव टू सॉल्व। टिल दैट टाइम, गुड बाय, प्लीज टेक केयर।